Good afternoon classes. I hope you all are doing great. So let's start our new lecture on marketing management. This is unit number 8 in anti-UGC net commerce syllabus. We have done marketing concept and approaches, marketing channels, marketing mix, strategic marketing planning. So today we will do market segmentation, targeting and positioning. So let's start. This is lecture number 5 on market segmentation. So why we need market segmentation? Because every individual has their different requirements, interest and attitude. An organization can't serve the different requirements of a market with a similar product. Okay, क्योंकि similar product से सबके requirements को fulfill नहीं किया जा सकता because each of us is unique. Thus marketer uses the concept of STP. Okay, and the goal of the STP process is to guide the organization to the development and implementation of an appropriate marketing mix. एक appropriate marketing mix को develop करना और उसको implement करना, ये सब STP process का goal रहता है, right? So according to Philip Kotler, STP represents the three important concepts of marketing, where S stands for segmentation, in which we define segments, T stands for targeting, in which we target the segments, and third is positioning. Okay, positioning in which we place our product in the minds of our target market. So let's move on. So STP is an interconnected marketing process. Okay, तो मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली कंसेप्ट दिया था विलियम स्मिथ ने 1956 में. ओके, so market segmentation refers to the process of creation of small groups within a large market to bring together consumers who have similar requirements, needs and interest for the purpose of selecting appropriate target market. Okay, तो market segmentation में basically हम heterogeneous population को homogeneous population में divide करते हैं, small groups बनाते हैं, उनके segments ready करते हैं जिससे कि हम एक target market को choose कर सकें within similar requirements, needs and interest. ठीक है, और उनको सर्व किया जा सके. सो देयर आर 4 बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. कौन कौन से होते हैं 4 बेसिस? फर्स्ट इज जियोग्राफिक बेस. ओके, इट इज बेस्ड ऑन कंट्री, सिटी, स्टेट, ओके, रीजन, नेशन, क्लाइमेट और पॉपुलेशन. ओके, लाइक सिटी होगी मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी, रूरल सिटी, एनी कंट्री हो सकती है, स्टेट ले सकते हो आप कोई, राइट, रीजन ले सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लाइक दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक्स. Demographics, it is based on age, like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. Okay, gender हो जाएगा मेल फीमेल, फैमिली बेस्ड भी हो सकता है, और एंड एजुकेशन कि कितना एजुकेटेड है कोई पर्सन उस बेस पे, इनकम, हाई इनकम, लो इनकम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और सिंगल, एंड रिलीजियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, लाइक दैट. तो डेमोग्राफिक बेस पे आप कर सकते हो डिवाइड सेगमेंट्स को. लाइक नेक्स्ट थर्ड इज साइकोग्राफिक्स. साइकोग्राफिक्स, इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ओपिनियन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज. ओके, किसी पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी ओपिनियन क्या है किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल मॉडर्न है, सिंपल है, पर्सनैलिटी कैसी है, वैल्यूज उसके कैसे हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज की कैसी हैं, राइट. तो ये सब वैल्यूज देखकर साइकोग्राफिक बेस पे आप सेगमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इज बिहेवियर. बिहेवियर बेस्ड ऑन यूसेज, कोई पर्सन कितना यूज करता है किसी प्रोडक्ट को, कितने टाइम, कैसे वो कब कब खरीद रहा है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, यूसेज आ जाएगा. बेनिफिट वो क्या देखता है उसमें, बेनिफिट, सोर्स, ओकेजन, कैसे कब कब खरीदता है, यूजर स्टेटस कैसा है उसका, ठीक है, एंड लाइफ साइकिल स्टेज. ओके, वो किस स्टेज में है लाइफ साइकिल की, लाइक ओल्ड एज है, सुपर सिटीजन है, या सीनियर सिटीजन है. ओके, एटीट्यूड उसका कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, तो ये सब बिहेवियर में आ जाते हैं, इनके बेस पे आप सेगमेंट्स रेडी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज टारगेटिंग. Targeting is the process of identifying the most attractive segments from the segmentation stage. जो आपने segmentation stage में different segments बनाए हैं, उसमें से most attractive segment को identify कर लिया जाता है. Usually the ones most profitable for the business. Okay, जो लगता है कि business के लिए most profitable है, उस segments को select कर लिया जाता है, और then उसके लिए भी target marketing strategies तैयार की जाती हैं, right? So there are different types of target marketing strategies. First is undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing होता है जिसमें कि mass market philosophy अपनाई जाती है. Mass market मतलब आप एक similar product ही सारे segments को जो है वो देते हो सर्व करने के लिए, ठीक है. So mass market philosophy पे सर्व किया जाता है. Then आता है lower cost of production and marketing. ठीक है, क्योंकि इसमें मास प्रोडक्शन होता है इसलिए वहाँ क्या आती है, लोअर कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की. ओके, और लोअर कॉस्ट की मार्केटिंग की आती है, क्योंकि सारी मार्केट को आप होल मार्केट को एक सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हो और उसी के लिए मार्केटिंग
की जा रही है। देन एब्सेंस ऑफ सिगमेंटेशन, इसमें सिगमेंटेशन सिगमेंट्स नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एब्सेंस होता है सिगमेंटेशन का। होल मार्केट को आप एक ही सिगमेंट की तरह यूज करते हो। देन नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आप एक सेगमेंट को आगे और सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो। सो दिस इज नोन एज मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग। ओके, इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, ठीक है। जो डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है सर्व करते हो। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट सेगमेंट्स को अगर सर्व कर रहे हो तो उससे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है और सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ती है, ठीक है। और इसमें हाई कॉस्ट आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। हर एक सेगमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं उनकी, उन सब पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हाई कॉस्ट आती है। सो नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, आप किसी एक मार्केट में एक सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, राइट। फर्स्ट है जैसे टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस, आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस में इसमें फोकस करते हैं। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके एंड रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है बिकॉज ये किसी एक सेगमेंट पे आप फोकस कर रहे हो, राइट। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स, वो बेबीज पे फोकस करता है, तो इस तरह से आप किसी एक सेगमेंट पे फोकस करते हैं। और इसमें जो फोकस किया जाता है मोस्टली ऑन इनोवेशन पे एंड मार्केटिंग पे ज़्यादातर इसमें फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग में कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लाइक डिज़ाइनर ड्रेस होती हैं, वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं, तो उसको कहा जाता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो इसमें मोर फोकस्ड होता है उन कस्टमर्स डिज़ायर एंड नीड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर्विस में इंडिविजुअल्स को सर्व किया जाता है टू बिल्ड अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप, ठीक है, जिससे बिजनेस के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप रहे, तो हर एक इंडिविजुअल को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें सर्व किया जाता है। एंड द हाईएस्ट मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स, अब हर एक इंडिविजुअल की आप रिक्वायरमेंट्स का इतना ध्यान रखोगे तो हाईएस्ट मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स इसमें लगेंगे, राइट। तो ये था आपका टारगेटिंग। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। So positioning refers to the place that a brand occupies in the minds of the customers and how it is different from other products in the market and how it is better than competitors product. ओके, तो पोजीशनिंग बेसिकली क्या होता है, आपके जो टारगेट मार्केट है उनके माइंड में आप कैसे पोजीशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, वो कहाँ प्लेस करेगा कस्टमर के माइंड में, ये सब उसमें पोजीशनिंग में आता है, ठीक है। तो अगर आप गुड पोजीशनिंग करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको मोर कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है, मोर प्रॉफिट्स होंगे। अगर मोर कस्टमर्स होंगे तो वो बाय करेंगे और मोर प्रॉफिट्स होंगे। और इससे क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी बनी रहती है, ठीक है, कि आप ही का ब्रांड जो है हर बार वही कस्टमर बाय करता है, तो ब्रांड लॉयल्टी बनी रहती है। एंड ब्रांड पावर, ब्रांड पावर क्या होती है बेसिकली, जब आपका आपका ब्रांड इतना फेमस हो जाता है कि जो और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी जो आप फॉलो कर रहे हो रूल्स वही वो फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ब्रांड पावर, कि आप क्या प्राइसिंग पॉलिसीज अपना रहे हो, क्या प्रमोशनल पॉलिसीज अपना रहे हो, वो कंपटीटर से फॉलो करने लग जाते हैं, तो ये आपका ब्रांड पावर माना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू पोजीशन। अभी देखा जाता है कि पोजीशन आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर्स, उनको पहले अंडरस्टैंड करो कौन से आपके टारगेट कस्टमर्स हैं। देन आपको अफोर्डेबल प्राइस रखना चाहिए, ठीक है, कि प्राइस बहुत ज़्यादा लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको डिस्काउंट ऑफर करनी चाहिए। ओके, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो अपने आप वो पोजीशन हो जाता है कस्टमर्स के माइंड में। अप टू डेट डिज़ाइन एंड फीचर्स होने चाहिए, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन फीचर्स चेंज कर देने चाहिए। नेक्स्ट इज बेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको बेस्ट अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। देन इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स, ठीक है, प्रमोशन मिक्स की जैसे आपने कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देनी है, ठीक है, कौन सा मीडिया आप चूज़ करोगे, और बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से आपको कुछ इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स यूज़ करनी चाहिए। देन बेटर सर्विसेज, राइट, आप क्या सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट के साथ, वो भी पोजीशन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देन गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है, किस लोकेशन पे मिल रहा है, और जब कस्टमर को नीड है उस टाइम पर मिल रहा है नहीं, वो गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बिजनेस का कैसा होगा। देन फीडबैक,
आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को कैसा लग रहा है उसके बारे में आपको फीडबैक सजेशन उनसे लेने चाहिए, ठीक है। तो इससे भी आपका कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट के प्रति अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये थे आप पोजीशंस कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव कवर टुडे एसटीपी। Okay, so thank you guys, and please do like, share and subscribe my YouTube channel JRF Anu Classes for more videos. Thank you and happy learning.